Mateen Khan up against his skipper of the ISCL, Sahil Wangadkar. Full toss and down the ground he goes. Over the bowler's head and gets off the mark with the boundary. Does Mateen Khan. Mateen Khan, the vice captain of that team. Sahil Wangadkar is the captain of that team, of that Goan team that will head to Bengaluru next month. This time played away and played away fine. That's yet another boundary. He won't miss out. Mateen Khan in his arc, he will take advantage. This time trying to cut that one, missed out. Fabulous bit of lighting this provided by Avishkar Mone and his team Arohan Rentals. If you are trying to do a tournament floodlight, of course you can contact Avishkar Mone. Short delivery banged in, and that has played down to the deep mid wicket fence for just for a single. Single taken, score moves on to 9. 4 deliveries, 9 runs. Lot of time just to get behind it and play that fine bit of pull, but missed out. Maybe hitting the back end of the bat and then not completely in control of that shot. Dot delivery nevertheless. Swing and a miss. Dot delivery. Dot delivery to end the over. Apart from those 2 boundaries, just the 9 runs coming from that first over. 9 without loss after the first. Gumteshwar Margaon. Change in bowling. It will be Vivek Harapurkar from the far end. 9 without loss after 1. All these trophies have been sponsored by Shri Babu Mandrekar in memory of his late wife, Bindya Mandrekar. Nicely played with soft hands. That will just be 1. Dot delivery straight to the man at mid-on will just be a dot. So far some bit of pressure that has been mounting on the other batsman Dinesh. Again, 2 under the bat.
And that's a dot delivery. Nicely played down the ground and will just be a single. Has been very tidy. Just the 2 runs of this over so far. 11 without loss. Last 2 deliveries remaining in this second over. First 2 overs mandatory power play, where you can keep 2 fielders outside the 30-yard ring. Full toss in the gap. Fielder, too much work for him to cut it off, but he can't. That's yet another boundary for Matin Khan. Score moves on to 15. That's down the ground on the bounce, and that will again go into the fence for 4. Yet another boundary. Back-to-back boundaries to finish off the second over. After completion of 2, it's 19 without loss. 19 without loss after completion of 2 overs. Gumteshwar Marga. Sahil Wangankar will continue from the Sacred Heart of Jesus School, and 19 without loss after completion of 2 overs. Gumteshwar Margaon. Nicely played. Waited for it and smashed it through the covers for 4. Wit provided and capitalizing on that wit. Dinesh Kadam. Swing, missed, dot delivery. Looking for a big hit, but missed out. In the air, in fact, falling short. That will just be a single. Score moves on to 24. Nicely played down the ground. Oh, put down. Chance gone begging. Matin Khan gets a respite. And look who it is, Vivek Karapurkar, dropping that catch. Usually a very safe pair of hands, but not on that occasion.
straight to Mr. Pavle. And Mr. Pavle on that one reaching. Dot delivery to end the over. In fact, a single delivery is remaining. Quickly, we all fear Vaman Mayekar just when he gives us that snaring look. That's up in the air. Keeper. Taken. Oh, put down. How about that? Another chance gone to the ground. Looks like Matin Khan had some luck for his dinner tonight. 25 without loss after completion of 3. Gumteshwar Margaon. And straight away after that drop chance, team meeting has been called for. 25 without loss after 3. And 3 more overs remaining. They certainly have some depth in their batting lineup. Sanket Moraskar still to come. Nicky P. Followed by Viraj, who can muscle the ball on numerous occasions. Devraj also to follow. And also Badal, who can hit the ball out of the park very cleanly, very crisp. Just saw some bit of him, but was really impressed. The kind of striking that he does. Yes, Rohit Pavle. Hat-trick in the previous game. What has he got now? Up against Matin Khan. Nick gone through. And they will take a single. Amit Fatharfekar couldn't quite collect it cleanly and throw it onto the stumps. Just a single. Score moves on to 26. Last 17 deliveries in this innings. Definitely they are eyeing around 60-65 kind of a mark. Goes down the ground. Goes over. And goes all the way for 6. And it's dropped in the crowd. First maximum in this innings of Gumteshwar Margaon. Score moves on to 32. Talking about 32, a fantastic run out earlier on. Swing and a miss. Trying for a swipe on the onside. Maybe a slog sweep. Missed out. False start. Needs to reload it again. 32 on the board. That's up in the air. Has wiped his hands and taken the catch. But his partner, Dinesh, who has to head back in the pavilion. It's 32 for 1, Gumteshwar Margaon.
New man in Viraj. 32 for the loss of 1. Good delivery, excellent delivery. Short deliveries when you are trying to bowl such a tall man, you need to be a bit quicker. You can't afford to be bowling any military medium pace so that it can be pummeled away, tongued away quite comfortably. As we saw it in the last game where he came in, smashed a few boundaries a maximum and finished off the game. That's up in the air. It's a mistime hit, but it's gone all the way for 6. It's a mistime hit from that powerful man, Viraj. Gets off the mark with the maximum. Score moves on to 38. 38 for 1 after completion of 4 overs. Gumteshwar Margaon. Change in bowling. It will be Arjun Nepali. Officials in this particular game, Vaman Mayekar and Sadgiri Naik, both very experienced umpires, very legendary panel this. Short delivery and gone. He would have hit it anywhere he would have liked. Maybe would have hit it into the restaurant, into that vacant region, but he couldn't quite. High on the bat and catch taken nicely by the fielder. Deep taking that catch and Matin Khan departs. 38 for 2. New man in Sanket Moraskar. Short delivery again missed. Maybe the trajectory that he's been bowling is much more quicker than the batsmen are trying to anticipate. And also, with the dew factor, the ball is skidding across, also becomes heavier when you are trying to time the ball. Again, missed out. And that will. A review has been taken just to check whether if it is a legal delivery.
It's a fair delivery. You can continue. Bye is given. "39. Short delivery. In the air again and taken quite comfortably. Deep again, taking the catch, and this time it's Viraj who has to head back. Third wicket down. It's 39 for 3. Gumteshwar Margao. New man in. Badal. Full toss. And that's all the way for 6. Television umpire has been referred for just to check whether if it is above the waist height, if it's not illegal delivery. Front foot is fine, but just the matter of where the ball has been met on the contact. It's a no ball. So this will be a free hit now. It went for a maximum. Now free hit time. As our dear friend Amol Jamdade will say, Ugda Dore Baga Need puts a chendu free hit. And there he goes down the ground. Just missed out. And we'll find, oh, direct hit would have been close. Sanket Moraskar would have been back on his bike into the dugout. Safely done though. No damage done. 2 more runs added. Short delivery carved away back at a point. Very well fielded by Vicky. Just 1. Score moves on to 49. 49 for the loss of 3 wickets after completion of 5 overs. Last over remaining in this innings of Gumteshwar Margao, who were put into bat by Autotech Panjim. Earlier on the night 1, it was Karrem cricketers Karrem reaching the semi-finals. Day before yesterday, it was Bhumika 11 Karnka. Yesterday, it was Swami Samarth 11 Usgaon. Which team will it be meeting the Diesel Boys Anjuna in that quarter-final 4? These are very strong teams. Pritesh has been given the ball in this final over. Short delivery in the air, and it will be in the gap for a boundary. And with that, 50 up for Gumteshwar Margao. They move on to 53. Badal is cutting loose.
Last over 5 deliveries. If they get at least another 15 to 20, that will be a decisive factor in this game, just to have the momentum shift into the bowling department later on. Appealing, that's gone, that's out. LBW given. Right on the boot. Deflecting, wanting the single, but Sadgiri Naik with that dreaded finger raises it. And another wicket. Badal this time. It's 53 for 4. You can see it on the replay of tenniscricket.in. It just hit the toe. Just a bit of feather. And Sadgiri Naik was very attentive on that occasion. As umpire, it is very tough. So many things you need to look at. And these umpires are doing a fine bit of job. Whether they are in the middle or whether they are looking at the replays again and again. New man in, Mahmood. Full toss. And Mahmood goes over the top with the maximum. Down on one knee. And another maximum. Score moves to 59 with that 6. Score moves to 59. Final 3 deliveries in this innings. Short delivery again. Oh, trying to cut that one. Missed out. Certainly feeling the absence of Naresh Soldekar, one of the senior most in this particular team. This time it will be wide. Extras. Once I got to meet the 2 veterans of this particular team, Matin Khan and Naresh Soldekar, explained it really well to me, saying that we are the pillars, we are taking the team forward with the youngsters. That's up in the air. It's coming down. And coming into the hands of the fielder at deep square. His partner coming in from the boundary rope. Mr. Gosavi telling him that it is just tilting in. He kept his eyes, kept his composure and kept it inside the boundary rope. Mahesh taking that catch. And 6th wicket down. 5th wicket down. Just to check whether he has touched the rope or not. Naked eye, it looked like he was well within the play. We'll just have a look just for the confirmation. As meanwhile Chirpu gets ready to come in. Fabulous organizing this. That's out, that's given. His millimeters. In fact, you can say 10 to 12 centimeters inside the boundary rope. Really good observation, really good the zoom that we got to see from here by tenniscricket.in. New man in, Akshay. Akshay Jogre.
Final delivery in this innings of Ghumteshwar Margaon. 60 for 5. Good delivery, chance of run out, and that will be gone. That's out. Another wicket. And with that, 6 overs have been completed of the Ghumteshwar Margaon. Matin Khan top scored with 20. Dinesh Kadam providing him good company with 12. Badal came in, scored 13. And in the end, lost too many wickets. The Ghumteshwar Margaon, requiring exactly 61 to win in 6 overs. Run chase just about 10 runs per over. At the start of the innings, with that run chase to decide whether which team meets the host Diesel Boys Anjuna in that quarter-final 4, we'll tell you through the words of Ashok Naik sir. So before the quarter-final 4, we'll have the live draw to decide whether which team meets which. 3 teams already into the semi-finals. Kharem Cricketers Kharem, Bhumika 11 Kanka, Swami Samarth 11 Usgaon. If any of their volunteers are here, all those 3 teams, they can come and then they can meet Vaman sir for the live draw. थैंक यू, धन्यवाद श्याम कलंगुटकर. 61 रन टोटल मैच को जीतने के लिए. और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुके हैं. साहिल वेंगणकर और साहिल के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बल्लेबाज अमित फाथरपेकर. पावर प्ले का पहला ओवर और बॉलिंग मार पर दिखाई देते हुए पहले ओवर में
गुरुशन चिखलगी उर्फ मेंडिस। अंपायर का इशारा खेल के शुरुआत होने का। 61 61 रन टोटल, एक अच्छा टोटल है जो 6 ओवर की अगर बात की जाए तो। पहली गेंद ओ फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, एक मौका जरूर था, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और अंपायर का इशारा आ चुका है तीसरे अंपायर की ओर। ये फुल टॉस है या बीमर है, इसलिए अंपायर का इशारा हो चुका है। और हमारे सर राजेश सिंगनापुरकर वो टीवी अंपायर जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वाइड बॉल, सिंगल वाइड बॉल के साथ और रनों का खाता शुरू होता हुआ। एक लेग स्टंप पर मौका जरूर था साहिल के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गुरशन चिखलगी एक बार फिर से अगली गेंद लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बैटर अमित पात्रेपेकर और स्ट्राइक पर है साहिल वाइंगणकर। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे एंडी। हार्टोटेक पणजी क्रिकेट टीम के साथ काफी सपोर्टर आ चुके हैं। इम्तुज के साथ उनके सभी दोस्त भी वो भी आ चुके इस अपने टीम के साथ इस मैच को देखते हुए। साहिल वाइंगणकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए, गुरशन अपने बॉलिंग मार पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 61 टारगेट। इस बार थोड़ा सा अपेश खेला हवा में, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, अपने पीछे दौड़ते हुए एक लगभग 15-20 कदमों को लेकर जो कि दौड़कर इस कैच को पकड़ा। थोड़ा दूर से खेला, इस बार बल्ले पर नहीं थे, लाइन पर नहीं थे और एक्स्ट्रा कवर पर एक मौका बना, लेकिन फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कैच, अक्षय जोगड़े, सीधे साधे अक्षय उस कैच को पकड़ते हुए। टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट पर डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर महेश। महेश कोरगांवकर न्यू बैटर मैदान पर और गुरुशंत अपने बॉलिंग मार पर, लेफ्ट हैंडर बैटर। इस बार फिर से हवा में गेंद लॉन्ग अप पर और बैक टू बैक और एक सफलता मिलती हुई गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को। डीजे आज के दिन की बात की जाए तो एक हैट्रिक हो चुकी है अब तक
और अब्बास गुरुशन चिकल गया अपने बॉलिंग बार पर जो हैट्रिक की गेंद लेकर सामने बैठ रहे राजेश गोसावी। स्कोर रुका हुआ 7 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ऑन हैट्रिक गुरुशन चिकल की। बल्ले से लगी थर्ड मैन पर निकली गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक शुरुआत बढ़िया की थी साहिल वाइंगन ने, लेकिन उसके बाद विकेट खो बैठे और बैक टू बैक और एक सफलता मिली गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को। बेहतरीन शॉट इस बार ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार कवर पर हल्के से गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन 2 विकेट पर। एक बहुत अच्छा ओवर गुरुशंत चिकली का, 8 रन और 2 कीमती विकेट हासिल के गुरुशंत ने। देखना होगा अब गेंदबाजी में कौन आते हैं बॉलिंग बार पर। संकेत कोरगांवकर आ चुके बॉलिंग बार पर, खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। विकेट कीपर संकेत बोरसकर, गेंदबाजी पर संकेत कोरगांवकर और सामने राजेश गोसावी। स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। टोटल लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए 61 रन मैच को जीतने के लिए, और जो जीतेगा आने वाला मैच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम के साथ। अच्छा शॉट इस बार, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर दूर है और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। पावर प्ले का ओवर, थोड़ा सा फिर से फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन। ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है तैनात। एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और संकेत दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। फिर से अच्छी गेंद इस बार, सिंगल बनेगा। काउ कॉर्नर पर आते लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचा, टोटल 10 पर 2 विकेट के नुकसान पर, और खेल जारी है दूसरे ओवर का। स्ट्राइक पर राजेश गोसावी, नॉर्थ स्ट्राइकर एंड पर अमित पातरपेकर, बॉलिंग बार पर संकेत। ऑप्टम से बाहर गेंद, पीछा किया था इस बार। अंपायर ने बाहर फैला दी वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 11 पर। सर वामन मयेकर, सर सदगिरी नाइक, सर राजेश शिंगणापुरकर, त्रिमूर्ति। डीजल ट्रॉफी 2025 डीजल बॉयज अंजुना ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता तीसरा पर्व, और इस बार फ्लड लाइट में ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए।
टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। संकेत गेंदबाजी करते हुए और सामने बैटर है राजेश गोसावी। एक डीप लॉन्ग ऑन, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। अपने लंबे रनअप पर लगभग 20-22 कदमों के साथ संकेत अगली गेंद लेकर। अच्छा शॉट, इस बार फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। 18 पर पहुंचा इस 1 रन के साथ। टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। संकेत की अगली गेंद। बल्ले से निचले हिस्से से लगी, फाइन लेग की तरफ निकली गेंद और रन के लिए निकले बड़ी तेजी के साथ। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन थोड़ा सा धोखा भी था इस सिंगल में। स्कोर पहुंचा टोटल 19 रन पर। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। संकेत अपने बॉलिंग मार पर सामने राजेश गोसावी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित। ये जोड़ी दूसरा ओवर जारी है। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिले स्कोर के खाते में। और इन 4 रन के साथ टोटल पहुंचा 23 लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर ओवर का और ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम 23 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बिल्कुल कप्तान की सोच है। मालूम है कि एक दूसरा और विकेट मिल गया तो और दबाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऑटोटेक पणजी की बल्लेबाजी पर। और यही सोच लेकर गुरुचंद आ चुके गेंदबाजी के लिए। खुद का दूसरा और टीम का तीसरा। 2 ओवर 23 लॉस ऑफ 2 विकेट। सामने स्ट्राइक पर अमित गुरुचंद की गेंदबाजी का सामना करते हुए। फुलर लेन की गेंद, इस बार हल्का सा अपील अंपायर की ओर, लेकिन उस अपील को नकारते हुए और धीरे धीरे आते हुए गुरुचंद अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ी सी चर्चा दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सागर ने थोड़ा सा कान मंत्र दिया अमित को और दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर एक बार फिर से। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर। इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा में और सीधे हाथों में फील्डर के। सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया टीम का। 23 लॉस ऑफ 3 विकेट।
नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, विवेक कारापुरकर और बिक्की राजेश गोसावी का साथ देने के लिए। एक फिर से अच्छा विकेट गुरुशन चिकल की, बिल्कुल कप्तान की अच्छी सोच, उनको फिर से लाया था गेंदबाजी के लिए, इक्का दूसरा विकेट लेने के लिए, और वो कामयाबी हासिल करते हुए गुरुशंत अपने बॉलिंग बार पर एक अच्छा कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर स्कोर रुका हुआ 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छा शॉट इस बार, ऑन साइड पर फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 24 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 24 लॉस ऑफ 3 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीच में, गेंद तारामंडल में, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 30 पर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट, ताकत टाइमिंग का मिलाप राजेश गोसावी के शॉट पर, और एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का गुरुशन चिकल के अपने बॉलिंग बार पर। ओ, अल्टी पल्टी के लिए बिल्कुल सोच थी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया वाइड बॉल के साथ स्कोर के खाते में, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल के लिए जो रिव्यू है वो ले चुके हैं अंपायर, टीम ले चुके हैं ये रिव्यू, टीम ने इशारा किया जो कि वाइड बॉल के लिए रिव्यू है वो। और देखना होगा हमारे तीसरे अंपायर जो कि सर राजेश सिंगनापुरकर टीवी के साथ, जो कि tenniscricket.in से ये लाइव प्रसारण उसी के साथ जुड़ चुके हैं। वाइड बॉल, तो एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ टोटल पहुंचा 31 लॉस ऑफ 3 विकेट, 31 रन 3 विकेट पर। अब यहां से लेकर भी 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और 20 गेंदों का खेल बाकी है। 20 डिलीवरी 30 रन, 20 चेंडू 30 धावा। अच्छी गेंद और बढ़िया क्रिकेट इस बार, अच्छी गेंद को बिल्कुल सम्मान दिया, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा 32 पर 3 विकेट पर, और सामने विवेक का सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर है, एक फिर से एक बार सिंगल, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, जिस अंदाज के साथ जोरदार बल्ला घुमाया था विवेक ने वो शॉट नहीं लगा। फिलहाल एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 33 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति हुई। आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी है, और 18 गेंदों में 28 रन, 18 चेंडूत 28 धावा सामना जिंकण्यासाठी। डीजे गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय जोगड़े आ चुके हैं बॉलिंग बार पर, बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे फील्डर है टीम के, और वो खुद का ओवर लेकर चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। 3 ओवर समाप्त हुए, 33 लॉस ऑफ 3 विकेट, आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी है, और अभी भी मैच को जीतने के लिए 28 रन। आधे मुकाम पर है मुकाबला, लेकिन मौका मेरे ख्याल से दोनों को है। 1-2 विकेट और लेने में सफल रहे तो मैच में पकड़ मजबूत कर देगी गुमटेश्वर मडगांव। अगर 2 बड़े शॉट लगे तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा रास्ता।
अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम का। फिलहाल देखना होगा क्या होता है इस ओवर में, आने वाले ओवर में। चौथे ओवर की शुरुआत सामने दूर वाले छोर से अक्षय जोगड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। जोरदार बल्ला घुमाया था, ऑन साइड पर कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया, 34 पर पहुंचा इस 1 रन के साथ। टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफसाइड पर अच्छा शॉट, गैप में लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल गोली की रफ्तार से तेज गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर। कोई मौका नहीं मिला दो फील्डरों के बीच में और 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। पणजी क्रिकेट टीम आगे बढ़ती हुई इस चौके के साथ। टोटल 38, लॉस ऑफ 3 विकेट। इसे ओ ये बिल्कुल करारा शॉट, गजब का टाइमिंग, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। इन 2 बड़े शॉट के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकला 44 पर, 44, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है मौजूद और जब तक लगभग बाउंड्री लाइन पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते स्कोर एक सिंगल के साथ आगे निकला, 45 रन पर पहुंचा। 16 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम जो जीतेगा वो खेलेगा अगला मैच डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम के साथ। हल्के से खेला इनको ऑफसाइड, ऑन साइड पर स्कोर लेगा अंपायर के बगल में। जब तक विकेट कीपर जाते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और से क्वार्टर फाइनल में डीजल बॉयज अंजुना अपने घर के मैदान पर और थोड़ी सी वार्म अप भी कर रही है मैदान पर, मैदान से बाहर। और लेकिन देखना होगा कौन खेलेगा उनके साथ, गुमटेश्वर मडगांव या अल्ट्राटेक पणजी। फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, अब सिली मिड ऑन एक तैनात किया है। ऑफ साइड पर एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। आगे निकलकर खेला इस बार एक लोअर फुल टॉस के लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक अच्छा क्रिकेट सामने, जब बड़े शॉट नहीं लग रहे तो सिंगल डबल बना रहे। स्कोर पहुंचा टोटल 47, 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 47, लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 14 रन, 12 चेंडू 14 धावा। गेंदबाजी में बदलाव, फिर की गेंदबाज वरद दाबोलकर आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। यह ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मैच में, क्योंकि अगर यह ओवर अच्छा रहा, 1-2 विकेट और मिले तो मैच में वापसी होगी। अगर इस ओवर में एक दूसरा बड़ा शॉट लगा तो लगभग मैच थोड़ा सा 19-20 का मुकाबला रहेगा गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के लिए। देखना होगा वरद दाबोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, दूर दूर जमाई गई फील्ड लगभग बाउंड्री लाइन पर। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राजेश गोसावी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है विवेक कारापुरकर। 12 गेंदों का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए 14 रन चाहिए। वरद दाबोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई 32 पर राजेश गोसावी 12 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 3 छक्के अब तक बल्लेबाजी में उनके शामिल। ऑफसाइड पर कट किया इस बार,
एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, ओहो आखिर में गेंद को रोका, जब तक गेंद को फील्ड करते। अच्छा थ्रो, बाउंड्री लाइन से सीधा विकेट कीपर के हाथों में और एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। 11 गेंदों में 13 रन, 11 चेंडू 13 धावा। पुलर लेन की गेंद, एक जोरदार अपील, अल्टी पल्टी की कोशिश रही थी इस बार, और राजेश गोसावी जाकर बिल्कुल बात कर रहे कि ये क्या कर रहे, बिल्कुल ऐसे समय में तुम। डॉट गेंद के साथ अपील भी हुआ था विकेट कीपर का, गेंद पैरों से लगी, लेकिन फिलहाल लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अगली गेंद भरत दाभोलकर की। इस बार गेंद हवा में, ओहो बेहतरीन कैच, स्क्वायर लेग पर लंबी दौड़ लगाई। इस मैच में 2 बहुत बेहतरीन कैच देखने को मिले गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से। शानदार फील्डिंग, मैच बिल्कुल निर्णायक मोड पर था, वहां पर एक विकेट हासिल करते हुए गुमटेश्वर क्रिकेट टीम। डीजे ओवर का आने वाला 1 ओवर अभी भी बाकी है इस इनिंग का, इस मैच का। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। 49 रन 4 विकेट पर 61 टोटल मैच को जीतने के लिए। इस बार मिस टाइम शॉट, कवर पर गेंद, लेकिन नो मैच लैंड में, और सिंगल के साथ 50 रन टोटल पूरे होते हुए ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के अभी भी चाहिए 11 रन मैच को जीतने के लिए। पहले दिन में खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम, दूसरे दिन में भूमिका 11 कांड का, कल श्री स्वामी समर्थ उसगांव, स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम। चाहिए जीतने के लिए 11 रन, और खेल बाकी है सिर्फ 7 गेंदों का। इस बार फिर से हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर आराम के साथ उस कैच को पकड़ा और एक विकेट चला गया। ये ओवर बहुत अच्छा ओवर रहा, विकेटों का सिलसिला जारी रहा। आखिरी ओवर यानी 6 गेंदे और 11 रन, 6 चेंडूत 11 धावा, 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट ओवर और मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन, 6 चेंडूत 11 धावा। डीजे
अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग मार पर विराज और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर रोहित पावले। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राजेश गोसावी और बॉलिंग मार पर विराज। अच्छा शॉट, सिंगल मिला स्कोर में। एक बड़ी प्रतियोगिता रही थी बिल्कुल एमपीटी मैदान वास्को पर डबल विकेट का, जो कि एक बड़ा टूर्नामेंट रहा था और उस टूर्नामेंट में चैंपियन रहे थे डबल विकेट में वो विराज। अब गेंदबाजी के लिए 50,000 रुपए का इनाम था वास्को की एमपीटी मैदान पर। शानदार आयोजन था, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी पूरे भारत भर के आ चुके थे उस डबल विकेट में और ये खिलाड़ी बिल्कुल चैंपियन था। और इन्हीं के साथ डबल विकेट में अक्षय जोगड़े थे। टोटल स्कोर 51, 10 रन चाहिए। अच्छा मैच दिखाई देता हुआ जिस तरह से डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम का मैच चला था। फुल टॉस और इस बार मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस शॉट ने बिल्कुल फिर से मैच में नजदीक लाया। 4 गेंदों में 4 रन, 4 चेंडू 4 धावा। टोटल स्कोर 57, लॉस ऑफ 5 विकेट, 61 टू विन दिस मैच। 4 गेंदों में 4 रन मैच को जीतने के लिए। विराज अपने बॉलिंग मार पर। इस बार ये मिस टाइम शॉट, कवर पर एक आसान सा मौका, विकेट चला गया और विकेट के साथ राजेश गोसावी अभी भी उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रुकना पड़ेगा। आने वाले नए बल्लेबाज पर थोड़ा सा दबाव होगा। डीजे डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए गौतम। अभी भी चाहिए 4 रन और खेल बाकी है 3 गेंदों का। क्या ये मुकाबला जिस तरह से डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम ने आखिरी गेंद पर मैच को जीता था, बिल्कुल उसी रास्ते पर यह मैच होगा? आने वाला समय बताएगा। विराज राउंड विकेट और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर आ चुके हैं न्यू बैटर मैदान पर, गौतम। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन फिर से एक बार सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। 58 टोटल स्कोर और 2 गेंदों में 3 रन, 2 चेंडू 3 धावा। 58, लॉस ऑफ 6 विकेट, 2 गेंदों का खेल और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 रन। और अब मात्र स्ट्राइक पर आ चुके हैं राजेश गोसावी। 35 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक डॉट गेंद के साथ गेंदबाज को भी दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी विराज की, काफी ढेर सारा अनुभव है विराज के साथ। विराज गवंडे, लास्ट बॉल टू गो और मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 रन। शेवटचा चेंडू 3 धावा सामना जिंकण्यासाठी। क्या मुकाबला कहां से कहां पर लेकर आ चुका है। आखिरी गेंद और 3 रन। ओ ये शॉट लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, क्या मैच को समाप्त कर दिया। शानदार बल्लेबाजी राजेश गोसावी की, लेकिन मैच को नहीं समाप्त कर सके। फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी, गेंदबाजी अच्छी रही
और खास करके मेरे ख्याल से जो पिछला ओवर रहा वरद का, सिर्फ 3 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, वो ओवर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा गया आखिरी बल्लेबाजी पर। तो